Basically, as PM Modi has talked about the vaccination drive, and in a single day, 3 days ago, the vaccination was around 86. शालिनी सुनिए सुनिए सुनिए, मैं कुछ और भी कहना चाह रहा हूँ। Yes. तो एक तो फोकस सारा वैक्सीन रेजिस्टेंस पे रखते हैं एंड वैक्सीन डिमांड पे। Okay. अभी कल शाम को एक पेपर आया है IGMR का, जिसमें उन्होंने मॉडलिंग एक्सरसाइज करी है और कहा है कि अगर पहले तो नेक्स्ट वेव नहीं आएगी तो बहुत ही माइल्ड होगी और फरवरी मार्च नेक्स्ट ईयर आएगी। तो ये हमारे पास 6 से 8 महीने का विंडो पीरियड है, जिसमें सब इम्यूनाइज अगर हो जाते हैं तो फिर हम तीसरी वेव को एक तरीके से, इसके बारे में भी कर लूंगी सर। तो मैं इस दोनों चीजों को जोड़ूंगा कि अगर इस समय वैक्सीन हेसिटेंसी जो प्राइम हाईएस्ट लेवल पे रिकॉग्नाइज करी गई है, ये बहुत अच्छी है और वैक्सीन का ये सबसे अच्छा मौका है जिससे कि आने वाली वेव्स को हम करीब करीब नकार सकते हैं। स्टार्ट करें सर? प्रिया थोड़ा आवाज कम कर दो। लेट्स स्टार्ट सर। यस प्लीज। Sir, today during Mann Ki Baat, PM Modi has discussed about the world's largest vaccination drive in India, as well as he talked about and discussed with the villagers of the country about the vaccine hesitancy, that they don't want to take vaccine because there is a kind of myth in their mind that is some kind of side effects they can face. As well as, sir, there is a research by ICMR, that is IGMR, and they have in their particular research, they have given the relevant and as well as the information which is related to the side effects of vaccine, as well as vaccine is safe. So how important it is for the third wave, as well as the vaccine hesitancy about which PM Modi has talked about. Thank you very much, Shalini, for inviting me to comment on this very important issue. I must thank the Honorable Prime Minister, the highest policy-making person who has recognized vaccine demand and vaccine hesitancy as an important issue. We know that with the availability of vaccine and a very well-organized vaccine distribution system, last 1 week has seen a huge surge in the number of doses given in this country. Now, in coming days and weeks and months, our target is to give 1 crore doses every day. To achieve this target, it is important now that the community, the people come forward proactively and take the vaccine. That is absolutely necessary. We all know there are several rumors, misinformations are spreading in the country, in the community. Similarly, people have some vague fear in their mind, which is called a fear of unknown. They think there may be side effects or vaccine may be unsafe. And I'm so happy that the Prime Minister has tried to allay that fear. But I must tell you, scientifically, we have been looking at the adverse events following vaccination. 95 to 96% people have only mild fever or local pain. So it is absolutely safe. In 4 or 5% people, some people have to be hospitalized for reasons like severe allergy. Some people get very anxious and they have to be hospitalized. But otherwise, these vaccines, both the vaccines are absolutely safe. Lot of misinformation which is circulating in the community, this needs to be tackled in an aggressive manner. We need to debunk this wrong information campaign and to see that the demand and confidence among communities spread and they accept the vaccine. Here, I would also like to mention that IGMR has come up a paper in last 24 hours, and which clearly says that because of a very severe second wave, the third wave is likely to come little late. We have a window period of 6 to 8 months. And we have the opportunity to use this window of 6 to 8 months to immunize everybody in the country.
This will ensure that either we don't get the third wave, or if at all it affects, it is a mild effect at all in the community and does not affect either the lives of people or livelihood of the people. सर मैं हिंदी में जानना चाहूंगी, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज इस तरह से मन की बात के दौरान वैक्सीनेशन कितना ज्यादा जरूरी है, कितना अहम है, क्योंकि कोरोना भी अपने रंग बदल रहा है और आने वाले समय में म्यूटेशन हो सकता है, तो उन्होंने वैक्सीनेशन की एक अहम भूमिका बताई है और लोगों के अंदर जो हेजिटेंसी है, कई ऐसे विलेजेस हैं जहां पर लोग पूरे के पूरे गांव ने 100% वैक्सीनेशन लगाया, लेकिन आज भी ऐसी कई जगह हैं जहां पर लोगों के अंदर एक डर है, हेजिटेंसी है इस पर। साथ ही सर आईसीएमआर को लेकर, आईसीएमआर की जो एक रिसर्च आया है थर्ड वेव को लेकर कि अभी काफी टाइम है और ऐसा नहीं है कि थर्ड वेव जरूरी ही आएगी, इन सब चीजों पे सर हिंदी में आपकी बात। धन्यवाद शालिनी, मुझे आमंत्रित करने के लिए। पिछले एक हफ्ते में जो हमने उत्साहवर्धक टीकाकरण के संबंध में जो सूचना मिली है कि 60 से 80 लाख लोगों को रोजाना टीका मिल रहा है, ये एक बहुत प्रसन्न करने वाली सूचना है। और इसका कारण यह है कि वैक्सीन अब उपलब्ध है। वैक्सीन का वितरण करने का जो तंत्र है वो हमारे यहाँ पूर्णतः बिछा हुआ है और उस अच्छी तरीके से काम कर रहा है। और ऐसे टाइम में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हमारा समाज, हमारे लोग बढ़ चढ़ करके आगे आएं और टीका लें। ये मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने वैक्सीन हेसिटेंसी को एक मसला बताया है और ये हम सब के लिए एक जरूरी चीज है कि वैक्सीन हेसिटेंसी जो है वो हमारे टीकाकरण के जो कार्यक्रम है उस पर बुरा प्रभाव डाल सकती है। मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि अभी तक जो 30-31 करोड़ टीके लगे हैं, उनके साथ होने वाले जो साइड इफेक्ट हैं उनको बहुत निकट से उनका अध्ययन किया जा रहा है। 96% लोगों को केवल हल्का सा बुखार या जहां पर इंजेक्शन लगा है वहां पर कुछ हल्का सा दर्द होता है 1 या 2 दिन के लिए, उसके अलावा कोई बड़ा सुरक्षा का कारण नहीं लगता है। कुछ लोगों को दाखिल करना पड़ता है जिनको बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है और इतनी बड़ी संख्या में जब लगते हैं तो ये हो सकता है। तो कुल मिलाकर के लबोलबाब यह है कि हमारी दोनों वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित हैं। इसके बारे में जो गलत बातें और अफवाहें फैलती हैं या फैलाई जाती हैं वो पूर्णतः निराधार हैं और एक पूरा का पूरा अभियान चलाया जा रहा है और चलाए जाने की जरूरत है, जिसको आगे बढ़ाया जाएगा कि लोगों के मन में सुरक्षा की भावना पैदा हो और इन गलत जो अफवाहें हैं उसके बारे में बताया जा सके। तो एक ये हमारे पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, मौका है कि टीका लगवाया जाए। यहाँ पर आईसीएमआर की एक पिछले 24 घंटे में एक स्टडी आई है जिसमें ये बताया गया है क्योंकि हमारी दूसरी जो वेव थी वो काफी लोगों को उसका प्रभाव हुआ, संक्रमित हुए लोग, इसलिए तीसरी वेव आने में अभी समय है। हमारे पास लगभग 6 से 8 महीने का समय है। इस विंडो पीरियड में, इस अंतराल में अगर करीब करीब सभी लोगों को टीका लग जाए तो शायद तीसरी वेव ना आ पाए। और यहाँ पर यह बता दिया जाए कि कोरोना अपना रूप बदलता रहता है, लेकिन जितनी भी वैक्सीन हमारे पास हैं वो गंभीर बीमारी, अस्पताल में दाखिल होने की जरूरत और मृत्यु से हम सबको बचाती हैं। तो इसमें वैक्सीन लगवाने का बहुत अधिक लाभ है और इस 6-8 महीने का जो अंतराल है इसमें किसी प्रकार की वैक्सीन के बारे में हिचक, किसी सुरक्षा के बारे में संशय को ना लेकर के सब लोगों से मेरा निवेदन रहेगा कि वो आए और टीका लगवाएं। सर मेरा एक सवाल और है सर, ये जायडस कैडिला को लेकर इनकी जो वैक्सीन का ट्रायल चल रहा है बच्चों के ऊपर, क्या उम्मीद है सर ये कब तक आ जाएगी? तो ये ट्रायल इनका करीब करीब खत्म हो गया है जहां तक हमें पता चला है। इसके रिजल्ट्स वगैरह को इकट्ठा करना और उसके बारे में अपना निर्णय में पहुंचने में 4-6 हफ्ते लग जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जुलाई के अंत तक या अगस्त में
हम अपने बच्चों को भी 12 से 18 साल के बच्चों को शायद ये टीका दे सकते। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।